Assalamu alaikum everyone, and welcome back to another video. So in this video I'm going to talk about some of the two tasks that provided by university theory class, right? And this is second assignment. थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, राइट? इस टास्क के अंदर we just study about if else conditions, right? We just mainly focus on if else condition. We have two questions right there, and the first program we just break the statement. Firstly, write up a C++ program that takes coefficients. You know about coefficients, numbers of beside you know about alphabets, like where we have an quadratic formula. If you have studied in ICS or pre-engineering, you study in math, and in which we studies quadratic equation, where we have ax2 plus bx plus c is equal to 0, right? So we're using this formula, and we calculate the root by using formula root 1 and root 2, and also we and display with the 2 decimal precision. And you know about that, for precision we use library #man ip, and second is we use a condition of set precision 2 with a fixed keyword, right? So the question is very easy. We just try to solve this question. We have a simple body structure #include, and we just have IO stream. Wait a second. Okay, IO stream. Now we have a simple using namespace. I know we just skip one of the library. We just mentioned that #include, and this type of IO stream, IO man IP, right? IO man IP, right? So here we have two libraries. We know about that. These called preprocessor directories, right? Where we get all the functions that run in the program. And you know, system is a dump machine, computer is a dump machine, and we just focus on that points. We make many functions in these libraries, and we just use reuse, because these are built-in function, right? Now first of all, we have an int main, and now we consider, that's a problem. Okay, sorry. Now we just add, actually there is screen on my side, and that's why I am क्वेश्चन मैं एक्चुअली यहाँ से देख रहा हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट ऐड एन अदर लाइब्रेरी दैट इज #include, and we have cmath. Why? Because we use a mathematical formulas, right? When we're using mathematical formulas, not arithmetic operations, we use mathematical formulas like Pythagoras theorem, like quadratic formula, then we use cmath, right? So now we have a simple coefficient, then we use double, because we have a precision, so then we use double a, b and c. We have three ints, right? And we just count cout, and now we have a simple, what's the hell? Okay, now we have enter the coefficient spelling ठीक है ना, COFFICIENTS. Okay, A, B, and we have C, right? एक्चुअली पता क्या होता है, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो रिमेंबर डैट कि जो आप क्वेश्चन है वो अपने पास नोट पे राइट कर लें, बिकॉज अब जारी सी बात है, बार ऊपर जाने की थोड़ा सा मेरे लिए इशू बनता है, ठीक है? क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन को फॉरन एज वेल एज सॉल्व करने की। तो फ्लो चार्ट बनाओ ना आपके पास, क्या ये प्रॉब्लम है, इसके बाद हम ये सेंटेंस बनाएंगे, जबकि सर ने बना के दिया हुआ है इसके अंदर, राइट? तो नो प्रॉब्लम, राइट? इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके, सो सेकंड देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका लेंगे CIN, तो हम इनका CIN ले लेते हैं, राइट? नाउ आफ्टर दैट वी जस्ट ऐड सम formulas. Wait a second, I'm sorry. Right, okay, now we have double. Now we use a simple discriminant, right? And when we use discriminant, you know about discriminant is a formula, and in mathematical form there is an other form of discriminant, but in programming, you know about that, we just make a formula that b multiply b, right? And after that -4, right? -4, just focus on that point, -4, then multiply by A multiplied by C, right? So this is a formula of getting discriminant. Then we have double.
double, and then we use root 1 and root 2. Now we're getting root 1 and root 2 by that, and now we have an if else condition, right? So we use if, right? And if discriminant less than 0, right? If discriminant less than 0, then what we can do that, count the root are complex, right? And after that we have an else condition. We have an else condition where we have root 1 which is equal to we have a minus b, and then we use plus, right? And then after that we use square root. Yes, square root. And this square root property getting from hash include CMath library, right? So that's an important case. And then we use only discriminant, right? And then after that just I think so that's clear. Okay, and we make a simple question. Please ignore the noise. Actually मैं हॉस्टल में हूँ, आपको पता है इस चीज़ का, तो यहाँ पे फिर शोर तो होता ही है, आप क्या कर सकते हैं इसका. 2 multiply by a. So that's a clear condition of this root 1, right? And after that I just copy this, and now we have an root 2, then we use a minus b plus simple we just have a minus sign right there, and to multiply, that's it. थोड़ा सा वेट करते हैं, शोर ज़रा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं, राइट? सो okay, now the next thing is, when we after using this else condition, we just make a count statement, right? Cout statement, and we just add a fixed, but before the fixed we just mentioned like that, and then we have fixed and set Persian, and in set Persian we add just 2. Now we have actually I'm using endl like that, and in that case of there are separate line for that. Now we use cout, but wait a second, थोड़ी सी मेरे लिए आसानी हो जाएगी कोड को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज जब हम कोड फर्स्ट टाइम लिख रहे होते हैं तो फिर यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम अभी स्क्रिप्ट किए नहीं थे, तो एक दोस्त की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे पहले ये क्वेश्चन करवाने पड़े आज, राइट? तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आज इशू आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट पढ़ के देन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? सो ओके, नाउ वी हैव रूट 2. नाउ वी जस्ट मेंशन there we have root 2. Okay, so that's it. We have an endl, and that's it, right? So this is the whole question, and I hope main चीज़ actually formulas है यहाँ पे, right? तो उनको समझना, just research on that, make Google, and according that what you use. हाँ, ChatGPT भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर समझने के लिए, राइट? और ये सिर्फ चीज़ें आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में की जाती है कि भाई ChatGPT यूज़ नहीं करना, कर लो, लेकिन जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. देखिए, जब आप चल जाएंगे ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो उस टाइम आपको कोई नहीं रोकने वाला. डू इट, राइट? बट एट दैट स्टेज आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे करने हैं, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा और पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, राइट? सो आई जस्ट रन दिस कोड, and I hope question is clear all, and there is no error, I think so. So I just run this code. First of all I debug this compile, ताकि मैं इसे compile कर लूँ complete, then मैं इसको run करूँगा proper, right? So I hope this file is running. So we have a 3 coefficient, we just add 2, right? Then we have 3, then we have a 7, and the root are complex because we have a minus value, right? Now another value. We run this code again. Now at that time I'm just run this file, I'm not using debugging, so it takes time. Wait a second, I just run this again. Okay, it's running. So now at that time I using 2, I using 4, I using 6, so the roots are also complex, right? So I hope you understand this question. And if I give this value -1, -2, -4, the root are also complex, right? But if I give the value of 0, uh, 0 0 and 0,
√1 इज नैन, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, राइट, एंड √2 इज आल्सो नॉट अ नंबर, राइट. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड लेक्चर. अब आप लोग ये कहोगे यार कि मैं क्वेश्चन 1 करवा रहा था, अचानक क्वेश्चन नंबर 2 वाले पेज पे कैसे आ गया. पता क्या हुआ, मैंने ना क्वेश्चन 2 टास्क पूरा कंप्लीट करवाया आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर. मैं वीडियो कट की है. तो हुआ ये, वेट अ सेकंड. ओके. सो हुआ ये कि उसमें ना जब मैंने प्रोग्राम पढ़ा, क्योंकि मैं प्रोग्राम खुद फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये प्रोग्राम जो था, तो मैंने उसमें विदाउट थिंकिंग मैंने फंक्शन रन करा, मैंने फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व कराया. एंड देन आई रिमेंबर कि यार फंक्शन ना मैंने खुद वीडियोज़ में पढ़ाए हैं अभी तक आप लोगों को, और जो जिनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उनको भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए हैं, ठीक है. सो देन आई रियलाइज़ कि यार मुझे फंक्शन में नहीं पढ़ाना चाहिए इसको. मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन एंड डिफरेंट कंडीशन जो हमें अभी तक यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीच किया है, उसी में मैं बना दूँ. सो अभी मैंने फिर फ्लो चार्ट बनाया पहले, राइट. डेफिनेटली वो आपको पता है फ्लो चार्ट तो बनाना डिफ़िकल्ट काम नहीं है. तो अब मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ जल्दी स्टेटमेंट लिखी और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, राइट. थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो इसे बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है. जस्ट वी हैव डे, मंथ एंड, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ईयर. क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लेते हैं. यूजर से हमने 3 इनपुट्स लेनी है, डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है, एज एन इंटीजर इनपुट, राइट. तो हमने यहाँ पे इंट ले लिया. मेक श्योर टू अकाउंट फॉर ए डिफरेंट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, अकाउंट ऑफ लीप ईयर का अकाउंट लेना है हमने, यानी कि हमने फेब्रुअरी डेट्स लेनी है, एज वेल इफ द इनपुट ईयर इज ओके. सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जस्ट यहाँ पे पहले तो हम सिंपल जो काम करना है ना वो करते हैं यहाँ पे, ठीक है. क्वेश्चन को जितना ईजी और शॉर्ट कर सकें उतना हम शॉर्ट करेंगे उसको. इंटर डे, मंथ एंड ईयर, राइट. मैं एक लाइन में काम कर रहा हूँ इसका, ठीक है. मैं एक्चुअली में बोल के काफ़ी थक चुका हूँ, और क्योंकि मैं पहले करवा चुका था इसे, लेकिन वो बाद में बस मुझे चेंज करना पड़ा इसे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा इस टाइम, तो इसलिए मैं कोड को जितना हो सके शॉर्ट रखूँगा, ठीक है. सो ईयर की स्पेलिंग गलत लिखती है, ईयर, व्हाट द हेक मैन. ओके, ऊपर भी ऐसी का. सो इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट. अब हमें चेक की करना है ईयर की वैलिडिटी क्या है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम एक इफ एल्स कंडीशन में आते हैं, ठीक है. सिर्फ मैं कह दूंगा कि यार मेरे पास ईयर है, ठीक है, और यहाँ पर यू नो डेट हम इनिशियलाइज करेंगे अपनी कंडीशन को 1900, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई फ्लो चार्ट. डेफिनेटली अब फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, और मेरे पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आसान था फंक्शन बिल्ड करके काम करना, ठीक है. तो वो खैर अब जब करवाया नहीं गया तो अभी तक तो मैं ऐसे कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ, राइट. सो अभी तक जितना हमने काम किया है ना, हम उसी को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है. एंड आफ्टर डैट अगर ये काम इतना हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं 0 को, ठीक है. ना भी करोगे मसला नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात है कर दो तो अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है. आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, अगेन हम ये चेक कर लेते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बूल इंटीजर लूँगा, ठीक है, और बूल वैल्यू लूँगा, और हम चेक कर लेंगे इज़ लीप ईयर और नॉट, विच इज़ इक्वल टू. अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला बनाया, जस्ट कॉपी दिस फार्मूला एंड ट्राई टू डू बाय ऑन. ये कंडीशन दे चुके हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. क्वेश्चन में कंडीशन अवेलेबल है कि अगर तो 4 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक यहाँ पे और एंड लगा देते हैं, ठीक है. हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. ईयर मॉडुलस 100, ओके. यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लगाएंगे और लॉजिकल ऑपरेटर. पता है मुझे, अलग अलग भी कर सकते हो, बस समझ लो ना यार इसको, लाइन को, कि अगर एक ईयर का मॉडुलस रहते हैं अगर वो बराबर है 0 के, एंड एक ईयर है उसका मॉडुलस 100 और वो बराबर नहीं है 0 के, एक कंडीशन. और अगर ये कंडीशन नहीं चलती, सेकंड कंडीशन आएगी, ईयर मॉडुलस बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0. दिखाता हूँ, कंडीशन दिखाता हूँ. सो एक लीप ईयर है, इसको डिवाइजेबल करो 4 से, एंड नॉट डिविजिबल बाय 100. जो इतनी लाइन में कोड लिखा है ना वो मैंने यहाँ लिख लिया, ईयर मॉडुलस 0, ईयर मॉडुलस नॉट इज इक्वल टू 0, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आया बट इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 देन द फर्स्ट, तो वो मैंने इसमें कर दिया, ठीक है. समझ आ गई बात, ओके. अब आगे डिटरमाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ द डेज इन द मंथ. सो इंट ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल डेज इन मंथ, ओके.
सो नाउ वी हैव एन इफ़ कंडीशन, और यार ये कंडीशन ना मुझे खुद इतनी अच्छी लगती। अब इसकी वजह से, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से मैं इस वे को यूज़ नहीं कर रहा होता। कोड ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है इन केस ऑफ विद, राइट। मुझे इतना लॉजिक ऑपरेटर्स यूज़ करने का दिल नहीं करता, तो मैं ज़्यादातर फंक्शन यूज़ करता हूँ। और बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है भी, हर किसी का अपना माइंड सेट है यार, ठीक है। नाउ वी हैव एन और कंडीशन मंथ। असल में ना जब बार मुझे ना ये बटन दबाने से उलझन होती है, ठीक है, लेकिन अपनी फैसिलिटीज़ के लिए हम क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर कंडीशन मंथ। अच्छा ऐसा करता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, ठीक है। आज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ तो ये कॉपी पेस्ट ना किया करें, ठीक है, लेकिन अब ओके वी हैव 7, वी हैव 8, ओके वी हैव 10 एंड 12, वी हैव 10 एंड वी हैव 12। इसके बाद और कंडीशन नहीं लगाएंगे, लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, लगाना भी मत। सो डे इज़ 31, ठीक है। देन हम कहते हैं यहाँ पे एल्स इफ, लेकिन आपके लिए समझना बहुत इजी होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब तो बहुत इजी है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन करैक्टर वाला, जिसमें हमने करैक्टर को जज किया कि वोवल है या कॉन्सेंट है। तो इसमें हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, ठीक है, कैसे हम और ऑपरेटर्स को हम एक लाइन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहाना आप कह रहे हैं यहाँ पे मत लगाना कि यार हमने चीज़ें पढ़ी हुई, तो आपने पढ़ी हुई हैं। ओके ठीक है, चलें। नाउ वी हैव एन एल्स कंडीशन, और यहाँ पर हमारे पास जो डेज इन मंथ हैं, अच्छा स्पेलिंग भी गलत किए हुए हैं यहाँ मैंने, सुभान अल्लाह, MON, ओके। सो अब यहाँ पे जो डेज इन मंथ हैं वो इक्वल है हमारे पास 30 के, राइट। सो आफ्टर दैट वी हैव एन अदर एल्स कंडीशन, या अदर एल्स कंडीशन, लेकिन ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए, इससे आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मंथ विच इज़ इक्वल टू 2। जब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा फंक्शन होता क्या है, और मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ, छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो फिलहाल ये, तो जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करो इस टाइम। डे इन मंथ विच इज़ इक्वल टू इज़ लीप ईयर, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अगर वो लीप ईयर के बराबर है, अगर वो लीप ईयर के बराबर है, ठीक है, तो क्या करना है उस टाइम पे इसे 29 कर दो। अगर नहीं है, अच्छा इसको कहते हैं, इसे भी इफ एल्स ही कहते हैं, लेकिन अगर हमें एक लाइन में अगर हमें कंडीशन बनानी है तो हम इसको यूज़ करते हैं, जैसा शॉर्टकट। देखो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ सिखा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। मैं आपको सेपरेट बड़ी वीडियोस बना के नहीं बताऊँगा कि यार ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल टाइम प्रॉब्लम को रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे, और तभी नई चीज़ें सीख रहे होंगे। अच्छा इसका मतलब समझ लो अगर तो इज़ लीप ईयर, अगर इज़ जो डेज इन मंथ अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 29 होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब, ये कॉलम मतलब एल्स है यहाँ पे, तो 28 होगा, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो यहाँ तक अगर होगा, उसके बाद लास्ट आता है हमारा एल्स कंडीशन, और एल्स में आ जाएगा हमारे पास सी आउट। तो मैं अभी सोच रहा था, मैं कहा शायद मुझे AI यहाँ पे शिकायत देगा, लेकिन आज AI ज़रा भी परेशान हुआ होगा, वो भी नहीं इज़ इनवैलिड, तो भी मुझे कोई एजुकेशन नहीं दे रहा। चले कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आगे दे देते हैं हम जस्ट एंडल, ओके, देन आई जस्ट रिटर्न 0, ठीक है, बिकॉज वी हैव एन वैलिड नंबर। ये लेकिन ये लास्ट वाला काम है, अगर एल्स कंडीशन चलती है तो, लेकिन अगर फर्स्ट वाला काम सारे होता है तो हमें मसला नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो हमारा इतना काम हो गया, जिसमें हमने अभी तक बात कर ली मंथ की और हमने बात कर ली डे की। अब चलते हैं आगे हम ईयर वाले सिस्टम, ठीक है, ईयर वाले प्रोग्राम में चलते हैं। मैं फॉर्मेट का सही कर देता हूँ थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा है आपको। ओके अब चलते हैं हम यहाँ पर आगे डिटरमिन करना है हमने। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी तक हमने बात की, यहाँ पे डे की बात कर ली, मंथ की बात कर ली, और ठीक है। अब इस तरह करते हैं, यहाँ पे हमने डे की बात कर ली, हमने ईयर की वैलिडिटी की बात की है, यहाँ पे ईयर की वैलिडिटी, हाँ ये की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कॉमेंट बना देता हूँ, डिटरमिन द वैलिडेशन ऑफ ईयर। स्पेलिंग ठीक है ना इस दफ़ा, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर किया, कमेंट करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, डिटरमाइन द वैलिडेशन ऑफ मंथ, डिटरमाइन
एंड नाउ वी हैव ओनली डेज लेफ्ट. सो अब हम करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ डे. सो इधर भी हम लगा देते हैं कॉमेंट एंड डिटरमाइन द वैलिडेशन ऑफ डे. ठीक है. नाउ सिंपल लेते हैं if else condition and in if we have an just else condition and just open it. So इसमें कंडीशन यहाँ रहेगी हमारे पास, खाली नहीं छोड़ेंगे, इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ क्या करते हैं कि अगर मेरा डे जो है, मेरा डे नहीं मतलब मेरा दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, आपकी बात हो रही है अगर आपका डे जो है वो बराबर है लेस देन है 0 से. ठीक है, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है. एंड देन हम क्या करते हैं, डे को लेस देन और इज इक्वल टू कर देते हैं. ठीक है, हाँ ठीक है. डेज इन मंथ के डेज इन मंथ, राइट. सो आई होप इट दिस कंडीशन इज विल बी ट्रू. मैंने भी खुद टेस्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को, अमीर को तो चल जाएगा. सी आउट करते हैं एंड लेस देन देन हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं द डेट इज वैलिड. द डेट इज वैलिड. नाउ यहाँ पे मिसरा करते हैं, आगे हम एंडल लगा देंगे एंडल. ठीक है. स्टेटमेंट में यहाँ तक ये है. एल्स में हम एक कंडीशन हम और लिखेंगे यहाँ पे सिंपल. पहले मैं एल्स लिखवा देता हूँ ताकि ना मैं एल्स से ज़रा फ्री हो जाऊँ. फिर उस क्वेश्चन को हम सरा ना उस कंडीशन को हम समझेंगे. वो एक लंबी कंडीशन ही है, ज़्यादा लंबी कंडीशन नहीं है. द डेट इज इनवैलिड. ओके. इसमें लिखनी है वो लाइन हमने, जो लाइन हमने ऊपर लिखी है ना, थोड़ी सी मिलती जुलती लाइन है. सी आउट करेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर यहाँ पे लगाएंगे कि अगर तो इस लीप ईयर है बोला. ठीक है, जो हमने यहाँ पे लीप ईयर विधान है. ठीक है. अगर तो वो है तो उस केस में क्या करो, इसमें कंडीशन बना देते हैं. तो क्या प्रिंट करना है हमें, अगर लीप ईयर है तो प्रिंट करना है इट इज़ ए लीप ईयर, राइट. एंड अब यहाँ पर आपको बेटर कंडीशन समझ आएगी. अगर तो लीप ईयर है, अच्छा मैं अपने हाथों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो नज़र नहीं आएगा वीडियो में. वीडियो में जो नज़र आएगा वो आएगा एपिक पेन, उसे भी ओपन करते हैं, डोंट वरी. ठीक है. एल्स कंडीशन अगर आई थी यहाँ पे तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे इट इज़ नॉट ए लीप ईयर. ओके. सो दैट्स इट एंड वी हैव एंडल. दैट्स इट. क्वेश्चन सॉल्व हो गया ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड गाइस. इनमें तीनों में जो भी आप लोग हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है. और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था. बड़े दिनों बाद इतना सी प्लस का मैंने लंबा कोड लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर अब हम काम कर रहे थे मर्ज स्टैक डेवलपमेंट में या मीन में या मैवन में PHP में. तो अब सी प्लस काफ़ी यार ERP सिस्टम्स पहले बनाए थे, उस टाइम यूज़ की थी इसको. अब बहुत कम यूज़ किया करता हूँ इसको. पढ़ाता रहा हूँ और वो पढ़ा भी रहा हूँ अभी, और बस चलती कंडीशन साथ साथ. ये है कि अब स्क्रिप्टेड बेस बहुत कम काम होता है, राइट. तो इसको हम सिंपल सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं. प्लीज़ यार सही चल जाना. ठीक है. फ्लो चार्ट के मुताबिक तो क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट, आई थिंक सो, चल भी एक्यूरेट रहा है. इंटर डे हमारा है जनाब 31. ठीक है. और उसके बाद हमने हमें देना है मंथ देना है. तो मंथ है हमारा यहाँ पर 14 तो मंथ होता नहीं ना, तो 9th मंथ दे देते हैं. और ईयर है हमारा यहाँ पे 1918. तो दैट डेट इज़ इनवैलिड, राइट. सो आई होप प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया तो हम एपिक पेन ओपन करते हैं और जो दो स्टेटमेंट्स आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं वो आपको समझा देता हूँ, राइट. मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा यहाँ पे, मैं थक चुका हूँ, दिल नहीं कर रहा मेरा करवाने को आगे भी, लेकिन अभी हमें इसे मुकम्मल तो खैर करना है. एपिक पेन हमारा ओपन हो गया है. ठीक है. इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हो, उसमें डिफरेंट आउटपुट इनपुट देके, राइट. हम सिर्फ समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर इस एरिया में क्या हुआ है. देखो मैंने कहा है कि अगर तो जो लीप ईयर है वो ठीक होता है तो क्या प्रिंट करो 29, अगर नहीं होता 28. यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन मार्क और कॉलम, ये काम कर रहे हैं इफ एल्स का एक लाइन के अंदर. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. और इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है इसको समझाना मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे ज़्यादा आसान लगता है ना काम, तो मैं तो समझता हूँ अगले को भी आसान लगेगा, मगर ऐसा होता नहीं है. अगर तो लीप ईयर है, ठीक है, करेक्ट है, तो क्या प्रिंट कर दो दिस इज़ अ लीप ईयर.
अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, दैट्स इट। तो इट्स वर्क लाइक एज इफ एल्स कंडीशन, राइट। सो आई होप आपको कोड समझ में भी आ गया हो, ठीक है। अगर नहीं आया रिवाइंड करो, फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दो कि यार इसको समझ दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं नेक्स्ट टास्क में नहीं बल्कि नहीं किसी और टास्क में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे याद रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं कमेंट के अंदर ही आपको उसके बारे में डिटेल शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।